solution for our children. ایک یہ ہے کہ بھائی you actually need to have a team. اگر آپ کو اس ٹیم کا نہیں ہے then you can actually do much. What mistake which I have made in the past 7 years of my life is that میں نے بہت ساری چیزیں اپنے آپ تک وہ چاہیے اور اس سے بات کرنا. But there was a person who I actually shared کہ بھائی میرا یہ view ہے, this is what I think, and he did not take it well. وہ تھوڑے سا offend ہو گئے. He was like yeah کہ this is nonsense. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. Just imagine کہ this is the thing کہ آپ کی ایج کیا ہے and what you are saying. This is not acceptable کہ ہم یہاں 30 سال سے بیٹھے ہیں, ہم نے 35 سال میں کم نے کام کیا ہے. This is something which is said لیکن آج تک ہو نہیں پائی کیونکہ کوئی اس کو پیچ نہیں کر پایا. ایک وہ چیز ہے اس چیز میں ہے وہ چیز کہ there are a lot of things which are going on. آپ اگر یہ if you see this world, there's this new world in or you actually spoke over John for King's sister view اور وہ view which is not acceptable to a lot of people. Okay, this sort of multinational corporations, these financial institutions, I know how they work. I have spent a lot of time to find out what is the plan, what is the ideology, what is the mentality, یہ اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے. Third, کہ بھائی why are you here? Like for example, if I ask myself کہ میں یہاں کیوں آیا, why am I born, مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی, مجھے why should میرا کوئی aim, کوئی objective کوئی is not to become a CEO. I'm just the only one. مجھے روز آفس نہیں جانا, doing the work which I believe is مطلب اس کا اتنا معنی نہیں. ٹھیک ہے, what are you doing? آپ کا ایک بینک ہے, اوکے ٹھیک ہے, it's a financial institution, آپ چاہتے ہو you have to do ABC. But at the end of the day, what are you doing? How much input are you making? What effect are you having? ٹھیک ہے, on the lives of so many people, because there are a lot of persons out there which who cannot think like me. ٹھیک ہے, because I belong to a background, I went to school, مجھے پتا ہے کہ بھائی A کیا ہوتا ہے, B کیا ہوتا ہے. The point is this کہ بھائی what do you want to do? I'm not actually want to get involved in this so-called یہ کوئی جاب کر لی 30 سال کر لی and بھائی اوکے 30 سال کے بعد یہ صحیح ہمیں تو ملا ہو گیا. I'm not born to work, I'm born to do something. ٹھیک ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ بننا نہیں ہے. مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا, مجھے فائنانس منسٹر نہیں بننا, مجھے CEO نہیں بننا, مجھے ملینز آف USD نہیں چاہیے اپنے اکاؤنٹ میں. مائی آبجیکٹیو ول بی ٹو ڈو, ناٹ ٹو بیکم. اینڈ one thing کہ this so-called vision that we have seen like persons who were excellent prime ministers and influential, unke visions actually died with them. Okay, we have seen remarkable men in history, okay, that who were amazing. جب وہ بولتے تھے millions used to be what in the world is this guy, یہ کہاں سے آ گیا, اس کی پرسنالٹی کی تھی اسٹرانگ, بٹ after the death the vision died. One point which is a source of concern to me is that, for example, how to continue your vision after your death. For example, آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, اوکے, لیکن ہسٹری has also said کہ بھائی کہ آپ کی ویژنس, آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی ٹیم میں شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور دے فیل کہ بھائی دس از all ایسے it's all crap. ٹھیک ہے, we have seen in history, for example, ہٹلر پہ جو اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کی ٹاپ ملٹری پرسن نے کی.
ٹاپ ملٹری پرسن. اور جب اس کو جب ان کا مارا گیا, دیٹ واز اے پوائنٹ جب ہٹلر کا ڈکلائن شروع ہوا. تو ہٹلر کا جو ویژن تھا, نو ڈاؤٹ میزمرائزنگ, 60 ملین لوگوں کو مر گئے تھے دیٹ وار میں, لیکن اس کا ویژن کنٹینیو نہیں تھا. He actually is one of the, what should I say, one of the 100 most influential persons to be born. Lekin his vision did not continue. His vision of a society which I believe was maybe not correct, it did not continue. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی ویژن ہے تو ویژن وہ سوسائٹی میں کتنا ایکسیپٹیبل ہے. وہ کتنا, اگر میں کوئی اور چیز اگر بولوں تو اگر میں یہاں پر بول دوں کچھ عجیب سی چیز, دیر سے یار یہ تو مسلم ہے, اس کے آپ میں بٹ وائی از ہی ٹاکنگ لائک دس, بیکاز کنونشنل نارمز نہیں, لوگ ایکسیپٹ نہیں کیا ایز سو ویژن ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے بھائی. یو آلسو ہیو ٹو سی کہ بھائی آپ کی سوسائٹی کیا ہے, ویئر ڈو یو بلانگ. ٹھیک ہے, if your society does not accept it, your visions cannot continue in long term. They will die with you. So this is one thing we have to understand کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو یہاں, why are you here. مجھے خدا کو مجھے پیدا کرنے میں کیا ہوا کہ why did he send me here. اگر میں آ بھی گیا تو میرا کیا آبجیکٹیو ہے. میرا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ میں روز صبح فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس طرح کو اپنا اور 8-10 hours I actually work many times. What did that affect the lives of so many persons out there which I believe are in need of a life, of vision, of a strength which is missing. میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. I'm in a form of a rat race like millions. We have persons here in this world ان کے پاس نیکی ہے, مطلب ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, but again they are involved in this rat race. This is a rat race we have to come out of. We have to accept the fact کہ بھائی آپ کچھ کرنے کے لیے آئے, آپ کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے. And the problem with this rat race is, even if you win this race, you're still a rat. You will still be a rat. So why to win this rat race? Come out of it. This is an amazing feedback, mashallah. I'm glad for myself. This is what I wanted. کہ ہم دیکھیں, you are right actually کہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹیم چاہیے, ہم لوگ سوسائٹی چاہیے, but who will build that society? Who will build those people? کہاں سے آئیں گے آپ, کہاں سے نہیں آنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to, if we understand کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم چاہیے, ٹیم کی ڈیولپمنٹ سب کہہ رہے ہیں نا. کسی نے کہا کہ جی اگر کسی سمجھائے گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کیا چلے گے کیسے, ہے نا, ٹھیک کرے گا. تو we need to go from I to B, but as Dr. Sara said, improvement starts with I. So then I need to understand the importance of the whole framework, the difference between system B and system A, and then gradually make a transition from system B to system A. اتا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے یہاں سے اٹھائی کے جاتے ہیں, ہو نہیں سکتا نا, اس لیے کہ سسٹم ہے پریویلیج ہے. ٹھیک ہے, تو maybe we need to institutionalize the whole idea. We need to establish organizations, institutions in all areas of life. Network and system. From system A. And this is what we have been trying to do. جو ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں ہاسپٹل, حکومت, فار ایگزامپل عرفان بھائی, ان کا فوڈ کا پورا بزنس, because he does not want to move forward with system B now. He's losing millions, but he is very happy. His family is very happy because all of Irfan Saab's family members have gone through this road. تاکہ جو ہے نا کل جب بیگم کل جب پیسے نہیں آئے ہوں گے تو بیگم صاحب کو بھی جائیں نہ ہو نا, یہ تو کیا ہوگا بھائی, کل تک تو آپ جو ہے نا وہ 8 لاکھ روپے مہینے کے لاتے تھے, اب یہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے.
So now Irfan's wife is on board, aligned with the vision. She's very happy, but that's fine. Now slowly and gradually we are transiting from B to A. या जो ना शेख हाशिम साहब जो है हमारे स्कॉलर है, कुछ लोगों की मुलाकात तो शेख हाशिम फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन है, गोरे हैं, और वो यहूदी नहीं थे, उनके अब्बा यहूदी, वो तो कुछ भी नहीं थे ना, तो ही वॉज अ कंफ्यूज्ड गाय एक्चुअली. तो हिज फादर was and is a Jew, mother is Christian. अब वो जीव और क्रिश्चियन के बीच में कुछ वो धरा पैदा हुआ, और बड़े वो बच्चा बड़ा हुआ, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँगा, और मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँ तो मैं जाऊँगा. And that created a lot of confusion in his mind when he was a young man, you know, late teens, 18, 19, 20, and he was a musician in Hollywood. तो उनका एक ग्रुप था और वो कॉन्सर्ट्स करते थे और दुनिया में जाते थे और जनाब अली वो बड़े पैसे से बनाते थे ज़माने में. And he was from a very rich family from Hollywood. फिर वहाँ से वो निकले जी, वो पता लगा जनाब हजरत जो ना इस चक्कर में कि यार मैं पैदा क्यों हुआ, what's right, where to go. Sheikh Saab has traveled to over 40 countries just in search of truth. From Africa to South America to North America to India to Far East, you know, इंडोनेशिया के जंगल और पता नहीं कहाँ की चोटें और जना धक्के और वो उर्दू में कहते हैं ना वो जूते चटखाना, जूतियाँ चटखाना, तो उन्होंने लिटरली जूतियाँ चटखाई है. और मोरक्को से लीबिया और फिर लीबिया से जो ना वो ट्यूनीसिया और फिर ट्यूनीसिया से इथियोपिया और इथियोपिया से सोमालिया, कंटिन्यू ट्रैवल, हर जगह पे 1-1 महीना 2-2 महीने गुजारना. तो उनकी बड़ी कहानी लंबी चौड़ी ना, वो कभी रिट्रीट पे जो लोग आएंगे इंशाल्लाह, रिट्रीट पे वो होते हैं हमारे साथ मलेशिया में, तो अपनी पूरी कहानी उनको कहते हैं सुनाएं. यू नो इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग. एक आदमी जो है वो कहाँ से चलता है कहाँ पहुँचता है, और फिर वो अल्लाह का फजल हुआ, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस्लाम हो गई पॉइंट पे. इस सोमालिया से इथियोपिया, पता नहीं इथियोपिया सोमालिया, कश्ती में जाते हुए कश्ती के सफ़र में बीच में उन्होंने काम किया, कुछ लोग उनको मिल गए, कुछ डिस्कशन हुई, कुछ हुआ नतीजे. अच्छा तो वहाँ से जो है ना जनाब ज़िंदगी ने टर्न ले लिया. तो ही वेंट टू मक्का. मक्का में है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है मक्का के अंदर. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर. He became an alim. Then he became an expert of Arabic. English तो उनकी of course language being American. लेकिन he became expert in Arabic. अब उनकी अरबी और इंग्लिश का लेवल बिल्कुल जो है ना वो, हाँ बहुत सारे जब अरब होते हैं ना, अरबों में जब होते हैं वहाँ जाते हैं सऊदी अरब या यूएई, तो हमारे जो अरब भाई होते हैं, अरब जो लोग होते हैं ना, वो उनसे बात करते हैं बड़े मुताद रखते हैं, क्योंकि वो उन नेटिव अरब्स की अरबी की गलतियाँ हाँ वो करेंगे. आप ये जुमला गलत बोल रहे हैं या शुरू हो रहे हैं या जुमला सुन रहे हैं. अच्छा वही होता है क्योंकि वो उनको जो है वो ज़ेर ज़बर का ख्याल इतना हाँ. नहीं अब होता है. देखिए इन्होंने चूँकि वो सीखी फुसा अरबी, फुसा तो वो तो बहुत ही फसाहत वाली अरबी, क्लासिकल अरबिक एक्सपर्ट है वो. तो इज लाइक दैट. फिर वो जनाब अली वहाँ पे पढ़े, फिर वहाँ पे रहे, उनके साथी. अब उनको उन्होंने कहा कि मैं कहाँ, अब मैं क्या दूँ, मतलब वेयर टू गो. तो उनके उस्ताद थे शेख अब्दुल्ला बिन बास, जो कि वो थे सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म थे उस ज़माने में. अब तो उनके साहबजादे हैं शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बास. तो अब्दुल्ला बिन बास इनके उस्ताद थे डायरेक्ट. और एक पाकिस्तान के एक आलिम होते थे मौलाना सईद अहमद खान साहब मदीना में, वो भी इनके उस्ताद थे. तो उन्होंने मशवरा किया अपना साथियों से, मैं क्या करूँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए. तो इनके साथियों ने कहा कि भाई देखो अगर ज़िंदगी गुजारनी है और आइडियोलॉजी भी गुजारनी है और तुम कोई काम करना चाहते हो, वो दुनिया में काम करने की जगह जो है वो तो पाकिस्तान है. तो और अगर तुम दुनिया में कहीं जाओगे तो तुम जो है ना वो काम कर नहीं सकोगे, तुम्हें कोई काम करना ना पड़ा. तो पाकिस्तान इज बेस्ट प्लेस. तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान का अपना मस्कन नाउ. And in 1984-85 we moved from New Jersey to Karachi. तो जब से कराची में तकरीबन कोई 27-28 साल हो गए. इमिग्रेशन
Immigration he is applied Pakistan. for the passport. He's the first person I found who applied for a Pakistani passport. American surrender करके. हाँ नहीं ये अमेरिकन. No, he said when last time I met him, he was going through the process of getting a हाँ Pakistani. he पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, but he did not surrender American passport. He is keeping the American nationality, American passport as well. तो उनका है, उसके अपने advantages हैं, because of certain reason. Vision के point of view से वो important है. तो हमने कहा कि नहीं आपको surrender नहीं करना है, keep it with you. You know, so he is keeping the both nationalities. माशाल्लाह ना पाकिस्तानी भी है वो भी है और कराची में रहते हैं. He established a business. हाँ अब पाकिस्तान में आने का उन्होंने बहुत छोटे हैं. यानी पाकिस्तान ने उनकी बड़ी खिदमत की. पहले चंद साल पाकिस्तान की उस खिदमत से गुजरे जिससे हमारे वो दुबई वाले भाई भी गुजरे थे. इनके साथ भी वही कुछ हुआ सारा हुआ. लेकिन वहाँ इनका ग्रेटनेस लेवल बहुत हाई है शेख साहब का. तो वो पता नहीं है लेकिन विजन के लिए आया है ना. सेटल वेटल होने का कोई इशू नहीं है. तो ही स्टेड बैक एंड माशाल्लाह ही स्टेड बिजनेस एस्टैब्लिश किया और यहाँ पे कुछ मदारिस में पढ़ाते भी रहे. जैसे बिनोई टाउन का एक मदरसा है जहाँ पर काफ़ी अच्छा सारों उन्होंने पढ़ाया. मदरसा आयशा एक है मदरसा, वहाँ पर पढ़ाते रहे. अपना बिजनेस इस्टैब्लिश किया. एक बिजनेस इस्टैब्लिश किया, फेल हुए, फिर इस्टैब्लिश किया, फिर फेल हुए, फिर इस्टैब्लिश किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में उनकी बिजनेस की विजनिंग हमने की थी. मतलब वो बेचारे इसी में फंसे हुए थे. पूरी सोसाइटी चलती सिस्टम बी के ऊपर. तो ही वांट्स टू कम ऑन सिस्टम ए. अब वो हो नहीं पा रहा इसलिए कि जो ना वो लोग नहीं मिल रहे ना. क्योंकि लोग जो हैं वो तो सिस्टम बी वाले चल रहे हैं ना. इवन वी सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल. मैं ये कहता हूँ कि डाई रखने से आप रिलीजियस नहीं होते. ये बहुत बड़ा खूनी है. डाई रखने वाले रिलीजियस होते हैं. स्कीम सेवर. हाँ ये स्कीम सेवर है. 5 के ऊपर टर्नों से हो जाएंगे तो ये बड़ा रिलीजियस हो गया जी. तो रिलीजन इज मच मोर देन दैट. एक्चुअली रिलीजियस इज मोर अबाउट अखलाक एंड मोर अबाउट कैरियर कैरेक्टर. Nobody cares मैं मस्जिद जाता हूँ नहीं जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ. बट पीपल डू रियलाइज एंड डू केयर कि आपके मामला कैसे हैं. मामला से लोग जज करते हैं. और शेख साहब का चैलेंज था. अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हुआ. 2007 में उनका पूरा कंपनी का विजनिंग प्रोसेस हुआ. हालांकि उस ज़माने में हमारा ये विजनिंग फ्रेमवर्क जो डिस्कस करें इट वॉज वेरी रूडिमेंट्री. इट वाज नॉट दैट डेवलप. ये विजन की वर्कशॉप को डेवलप हुए 1-1.5 साल ही हुआ था. तो वो हो गया. शेख साहब का अखलास क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अखलास है. उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया विजन में. अल्लाह की शान है कि उनका जो विजनिंग का प्रोसेस था उसके बाद उनकी जो बिज़नेस है वो कहीं से कहीं पहुँच गई. माशाल्लाह आपको 40 मुल्कों में वो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान में कराची में बैठ के किस चीज़ का बिजनेस? हर्बल प्रोडक्ट्स. वो तमाम प्रोडक्ट जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी उन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में आम करना. जैसे कि मिसवाक, जैसे कि ब्लैक सीड ऑयल, जैसे कि शहद, जैसे कि खुशबूयात, जैसे कि खजूर और इस तरह की वो तमाम प्रोडक्ट्स. जी ये क्लाइंट है. हाँ माशाल्लाह क्लाइंट है. हमारे भी क्लाइंट हैं. हमारे फैसिलिटेटर टाइम वेंडर्स की विजन रिट्रीट पे इज वन ऑफ दी फैसिलिटेटर. लोगों को फैसिलिटेट करते हैं वहाँ पर हाउ टू डेवलप, हाउ टू थिंक. तो वो हुआ बिजनेस कहीं पहुँच गया. एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ मॉडल, अ बिजनेस मॉडल जो कि सिस्टम ए पे काम करे. है जी UBM प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड उबूदिया बिजनेस मॉडल, सिस्टम ए बिजनेस मॉडल. उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन अब चल रही है, तकरीबन कंप्लीट हो गई कि अगर सिस्टम ए में आपने कोई बिजनेस चलाना है तो चले जाए. भैया आप कहें फ्रेमवर्क चाहिए ना. यू नीड टू हैव स्ट्रक्चर. अगर स्ट्रक्चर इज रियली नॉट अवेलेबल, ठीक है आइडियाज़ है, बहुत सारी बातें सबको मालूम है, हमारे जहनों में होती है. लेकिन इसको अगर आप पेपर पे ले आए, स्ट्रक्चर करते हैं तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा. है ना. जो बातें मैं कर रहा हूँ पहले दिन से लेकर आज तक इसमें से शायद 80-90% बातें आप सबको मालूम थी. मैंने कोई नई बात आपको अभी अच्छा बताई नहीं और शायद आज शाम तक मैं वो नई बात नहीं बता रहा हूँ. ऑल what I have done or we've done Highlanders is just to structure that scattered knowledge. That's it. आप उस उन दोनों बातों के स्ट्रक्चर किसी को दे दें तो लोगों के लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा. वरना कि आपको नहीं मालूम कि अम्मी के साथ बैठना चाहिए, अम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अम्मी के साथ बात करनी नहीं मालूम कि आप करता है. आप क्या मालूम है ना, पर वो स्ट्रक्चर नहीं हुई. तो बिजनेस कैसे करना चाहिए हमें नहीं मालूम है. मालूम कब मालूम और उसमें स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और सिस्टम भी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने पूरा डेवलप किया. तो अब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है ना वो सिस्टम के ऊपर आना शुरू हो. ठीक है अभी वो पेस स्लो है. देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो जिन्होंने उस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है. लेकिन उम्मीद ये है कि 10-15 सालों में जो है वो शुरू हो जाएगा. बहुत सारे लोग जो है वो
کھلے ہوئے بیٹھے ہوئے ریڈی ہیں. اس پہ کوئی بڈنگ انٹرپرینور ہونا ہے کچھ اور اس سے گائیڈنس مل جائے تو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اس میں. ایک پورا گروپ ہے بھائی. ٹیلنٹس کی فیملی میں کئی لوگوں کا گروپ ہے. مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس, فائنانس کے ایکسپرٹس, ایچ آر کے ایکسپرٹس, اس کے اندر جو ہے نا پروڈکشن کے ایکسپرٹس, ہر فیلڈ کے لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے پروجیکٹ کو جوائن کیا ہوا ہے وہ اپنے سسٹم بی کو سمجھتے ہیں اچھی طرح اور سسٹم اے کو بھی میں بھی چاہتے ہیں. تو وہ اپنی پوری ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ دیکھ کر انہوں نے وہ پورا اتنا بڑا مینول ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ مینول ہوتا ہے تو اس کا پورا مینول بن گئی. Will we be able to meet potential investors? دے آپ دے اگر آپ کے اس میں چائے ہوگا ایک اچھا بزنس پلان ہو جائیں آپ جا کے جو ہے نا وہ لے لیں, آپ فریم ورک لیں, پلان دو. اور جیسے عرفان صاحب ہیں, عرفان صاحب واز ان ملیشیا. اب ہم اور بھی لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے یار, ٹھیک ہے میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, ڈو اٹ. چلو ویری گڈ. This is a platform to meet like-minded people and start doing something on this business system. لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا بھائی, یہ آسمان سے اتر کے کوئی آئے فرشتے نہیں آئیں گے. بزنس پلان آپ کو خود ہوگا, انہیں کنسلٹیشن میں ڈیولپ کرنا. آپ کو مینول دیں نا پورا, پھر آپ کو ایڈوائز چاہیے تو دیر آر ایڈوائزر اویلیبل. دیر آر پیپل آن دیٹ پروجیکٹ جنہوں نے اپنی جاب کو چھوڑ کے وہ سسٹم پہ اس کام کو بڑھائے ہوئے. ویری سینئر گائے فرام ٹویوٹا, انڈس موٹر ٹویوٹا, ٹویوٹا شوٹ, سوری یار بہت گیا ٹویوٹا بہت سینئر ہمارے سیلس کے پاکستان کے صاحب ہیں. میں سیلس مارکیٹنگ کے پروسیسز اور پروسیجر ڈیولپ کرنے کا کام کرتا ہوں, اس کے اوپر کام کرتا ہوں. میرا پیپل ورکنگ. ہاں لیکن وہ لوگ تھوڑے ہیں نا, ہمیں تو بہت سارے لوگ چاہیے نا. اگر ہم سب کا شعور یہ کہتا ہے, جو عمر بھائی کا شعور کہہ رہا ہے, جو فرحان صاحب کہہ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو آفت کہہ رہے ہیں, تو پھر کچھ قدم اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا, یہ کمرے میں گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, کچھ عملی طور پہ کچھ تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ایسے خیالات تو آپ کے جو ہے نا وہ ذہن و قلب میں جو ہے نا وہ بچپن سے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے, اور وہ خیالات کے ساتھ ہی قبر میں اتر جائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ اور میں قبر میں اتر جائیں, ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شروع کرو. اور 3 جو ہے شروع ہوگا, شیئرنگ شروع کرتے ہیں بلا خوف و تردد. بلا خوف و تردد آپ شیئرنگ شروع کرتے ہیں, اسٹرکچر بنانا شروع کرتے ہیں, تاکہ جب تک یہ ہم رہتے ہیں نا پری ریکویزٹس کے اوپر کہ جب تک ہم خود کو نہیں کر لیں گے ہم آگے بات نہیں کریں. آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں, اس سے آپ کے لیے جانا آسان ہو جائے گا. ہر ورک شاپ جو میں کرتا ہوں, ہر ورک شاپ جو میں کرتا ہوں, یہ آپ کے لیے بعد میں میرے لیے پہلے تحریک کا موجود ہوتی ہے. کیونکہ مجھے ہر مرتبہ سوچنا پڑتا ہے یار میں خود بھی تو آئی نہیں, میرے ہمارے بھی تھے, میرے بچے بھی تھے, میری موجودہ والے بھی تھے, رشتے دار بھی تھے. آپ کرنا شروع کریں. عارف بھائی شیئرنگ میں کرنے سے ابھی صبح کرنے کے ایک چینج یہ ہے کہ میں تقریباً لاسٹ 2 سے تقریباً 3-4 مہینے میں میرا آفس جو ہے یہ کراچی کی بیک سائڈ, کراچی کی بیک سائڈ آفس. میں تقریباً لاسٹ 3-4 ایئر سے میں 8 بجے پہنچ نہیں, لیکن یہ یہاں جو ہے میں 8 بجے سے پہلے پہنچ. تب کہ ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ بھی نہیں تھا. ہماری ٹائم 8 بجے ہوتی ہے, کوشش بڑی ہوتی ہے, لیکن جو ہے نا مشکل لگتا ہے. یہ کہ سوچا کہ کریں گے, سوچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو ہوتا ہے. اس لیے یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی امید رکھتا ہے ویسے ہی امید جتنی
क्लियर हो, जितनी वाइड हो, आपके तमाम रोल्स को, तमाम डायमेंशंस को टच कर रही हो, ज़्यादा मुझे अच्छा है, ताकि आपको वो मिलेगा जो आप उम्मीद होती है उस पर आपकी आप लेस होते हैं। चीज़ समझने मैंने हमारे PCCI ज्वाइन की, तो उस वक्त हमारे बहुत से लोग काम कर रहे थे, तो कोई फर्स्ट दूसरा एंड नहीं था। हमारी बेसिकली नेचर ऑफ जॉब ये थी कि थोड़ा R&D करना, और अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है इंस्ट्रूमेंटेशन में उसकी हेल्प करना। तो हमारा ये था गवर्नमेंट में कि कोई छोटा सा काम तो हम कहते हैं वर्क ऑर्डर देखते हैं, लेकिन हमने अपने ग्रुप में देखा कि अगर किसी की हेल्प आ रही है तो हम बगैर वर्क ऑर्डर के हेल्प करते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी ठहरना होता है तो हमने अपने बॉस से सीखा कि नहीं आपने काम करना है। तो हमने उस तकरीबन 2000 में हमने कुछ ऐसे काम कर लिए कि जो इत्तेफाक़ सीमेंस के प्रोडक्ट थे। उस पर सीमेंस ने हमें 2002 में जनवरी भेजा कि आपने हमारा काम अच्छा करना किए, तो अब नेक्स्ट आप हमें अच्छा जो है सर्विस देंगे। तो फर्स्ट टाइम हम बाहर गए, फिर चूँकि हम यहाँ काम करते थे तो हमारे यहाँ से मेजॉरिटी बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए जाती है, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो 2004 में फर्स्ट टाइम हम ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर गए, और था वही विजन कि अगर हम अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो फ्लरिश होंगे। तो हम 2004 में सूडान एटॉमिक कमीशन गए। हमारी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उनको ट्रेन किया, वो ट्रेनिंग अच्छी सक्सेसफुल हुई। 5 में दोबारा मैंने बैठ किया, 5 में दोबारा 15 डेज की वर्कशॉप और हमने, और तकरीबन समझ लें हमने इस दौरान भी सारे गरीबों मालिक तकरीबन हमने 8 वर्कशॉप्स इस तरह बाहर रही था, जिसमें हमने वो मालिक की हम इजिप्ट गए, सेनेगल गए, और लास्ट ईयर हमने 15 डेज की वर्कशॉप थी। 5 डेज हम दोबारा सूडान गए और 5 डेज हम घर गए। विजन अगर आपका जो है जितना आप वाइड रखेंगे, जितनी आप उम्मीद रखेंगे कि गॉड विल ब्लेस यू, आप लाजमी ब्लेस होंगे। हाँ, ये है चीज़ लेकिन कि हम अपने विजन को तमाम डायमेंशंस के अंदर उसको रियलाइज़ करते हैं, जब कितना हम उसको जो है वाइड रखते हैं, कितना उसको क्लियर देखते हैं। जितना हम क्लियर देखेंगे उतना वो होता है। शेयरिंग और डिस्कशन काफ़ी नहीं हुई वाइफ के साथ, छोटी बहन के साथ और मदर के साथ, तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट आ रही है। और जो कल हमने लर्न किया डिफरेंट रोल्स वो डिस्कस हुए, उनके ऊपर डिस्कशन हुई, हुई अंडरस्टैंडिंग बनी के लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ की कोई डिसीजन लाइफ में जो भी डेली बेसिस भी होते हैं और पीरियडिकली भी होते हैं, तो वो विजन के साथ अलाइन हो और बेहतर डिसीजन। और जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेमवर्क। जैसे कि फ्रेमवर्क हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर अगर हम करियर से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो उसी तरह अगर हम फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन एनी वॉक ऑफ लाइफ, वो फ्रेमवर्क को समझ रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इंशाल्लाह, तो हमारे सारे डिसीजन जो हैं और वो सारे अलाइन हो जाएंगे और टुवर्ड्स वन डायरेक्शन जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड डिसाइडेड। हुआ कल वापसी में जाते हुए डिस्कशन हुआ था वाइफ के साथ ही, तो उसके अंदर काफ़ी बातें आई सामने। रोल उसके ऊपर खास तौर पर सबसे ज़्यादा है कि जो आपने कल कुछ कहानियाँ सुनाई थी, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें अपने एज अ पेरेंट
विजन बनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम 15 साल बाद 20 साल बाद जाके वो फेस ना कर रहे हो जो आपकी कहानी हो, मतलब आप हमारी कहानी ना सुना रहे हो अपनी वर्कशॉप में। तो उसके आपकी कहानी सुनाएंगे, मतलब अच्छे मानव में सुना रहे हो इंस्पायर करने के लिए। और उसके अलावा मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स के ऊपर बात आई कि जो हमें किसी भी रोल में वो करना है, वो लोगों को खुश करना हमारी वो नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से उसके हवाले से जो बहुत सारे फोनीज हमारे दिमाग में बैठे होते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या बोलेगा सामने वाला, या क्या मतलब क्या रिएक्शन आएगा सामने से, वो कुछ पोनीज जो है वो थोड़े आराम से मर जाते हैं, कुछ पोनीज के लिए थोड़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ती है मरने के लिए। तो वो थोड़ा सा आया डिस्कशन के अंदर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जिसकी वजह से मैं ये वर्कशॉप दोबारा कर रहा हूँ और वाइफ को भी करवा रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि अपने अराउंड जो है वो बहुत सारे लोग होने चाहिए जो इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। जब तक वो नहीं होता, कि मैं पिछली दफ़ा भी जब करके गया था 3 दिन तक बड़ा मोटिवेटेड, 6 महीने तक बड़ा मोटिवेटेड, फिर आहिस्ता 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 वो मोटिवेशन डिटेरियरेट होती रही, क्योंकि मैंने अपने आप को कनेक्टेड नहीं रखा आप लोग के साथ या और विजनरी लोगों के साथ। तो इसी डिस्कशन के अंदर एक ये भी बात आई थी कि भाई ये सारी जो है बातें किताबों में बड़ी अच्छी लगती हैं, वो लिखती हैं, फिर उसमें मुझे जो है वो इंडस हॉस्पिटल की एग्जांपल याद आई कि वो भी 2003 में हमारी तरह वर्कशॉप करके गए थे। उससे पहले उनका भी शायद विजन नहीं था इस तरह का कोई, लेकिन जब वो वर्कशॉप करने जाने के बाद मतलब यहाँ पे 35 लोग बैठे हुए हैं, इन 35 में से हो सकता है कि जो 33 हैं वो मंडे को जाके वापस अपनी ज़िंदगी वैसे शुरू कर दें, लेकिन जो 2 लोग उस तरह का विजन परसू कर लें, जो हॉस्पिटल बना लें या कोई बना लें, तो मेरे ख्याल में आप लोग का जो काम है वो तो हो गया जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपने ऊपर होता है कि हम इन चीज़ों को अप्लाई कितना करते हैं ज़िंदगी में। ये कि हम 3 दिन में यहाँ पढ़ के चले जाएं, बाद में वापस से वैसी ज़िंदगी चिल्लुओं जैसी ज़िंदगी शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं रहेगा। हमारे बेसिकली जो हमने यहाँ पे भी टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है वो भी ज़ाया चले जाएगा। ये जो आई और वी की बात कर रहे थे, उसके हवाले से मुझे एक छोटी सी एनालिजी हो जा रही थी कि एक वर्ड होता है वेल, उसके अंदर से वी को हटा के आई लगा दें तो वो इल बन जाता है। तो वेल के अंदर से हम वी को रिमूव करके आई लगा दें तो वो बेसिकली बीमारी का ज़रिया बनती है, और उसमें आई की जगह वी लगा दें तो वो बेहतरी का ज़रिया बनती है। बस यही। हाँ, एक और फ़ायदा जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो आज और वो आया, कल जो है वो सुबह उठने पे थोड़ी सी नागवारी का सामना हुआ था, और आज सुबह उठने पे ये रिएक्शन आया कि इंशाल्लाह कल से इस रूटीन को मेंटेन करते हैं। मतलब भले वर्कशॉप में नहीं जाना, लेकिन फजर के बाद नहीं सोना इंशाल्लाह। तो वो कल जो है वो थोड़ी नागवारी हुई थी उठते हुए, आज जो है वो कम हो गई, और ना सिर्फ कम हो गई बल्कि ये हो गया कि बड़ा फ़ायदा हुआ कि दिन भर फ्रेश भी रहे और लंबा दिन भी हो गया काफ़ी। तो खून ही निकल गई एक, हाँ, उम्मीद है कि निकले। मतलब वो जाहिर है कि मेरा, मैं वही बता रहा हूँ, जब पिछली बार मैंने वर्कशॉप की थी तो मैं 6 महीने तक इस रूटीन पे आ गया था कि मैं फजर के बाद नहीं सोता था, और उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं गुजारा, ना उसके पहले और उसके बाद। और वो छूटने की वजह ये थी कि एक तो मोटिवेशन कम हो गई थी, और ये कि फजर बहुत ही पीछे चली गई थी, तो फिर जो है वो ज़्यादा रहा जाता नहीं था। जैसे सुबह उठने का ताल्लुक फजर से होना ही नहीं चाहिए जी, ये भी। अगर आप फजर से लिंक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो आदत बनाई सर्दियों में थी कि फजर बहुत देर से होती है। आप उठने का टाइम आप फिक्स कर लें 4 बजे, 4:30 बजे। अब वो जो है ना फजर पीछे हो रही हो, आगे हो रही हो, गर्मी में हो रही हो, सर्दी में हो रही हो, सोना का जी 9 बजे का 4:30 बजे उठना हो जाए। हाँ 10-11 बजे 11 बजे 5 घंटे बहुत बड़ा है। नहीं बता और स्लीप मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद बहुत सारे लोगों का हुआ, कभी करता हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा से फजर के बाद ना सोने का है। नहीं, वो अब सर्दियों से आदत फॉर्म होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएगी। If you want to walk fast, walk alone.
if you want to go far, walk together. آپ بہت تیز چلنا چاہتے ہیں تو اکیلے چلیں گے. ہمیں دور جانا ہے نا تو ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, ورنہ آپ اکیلے رہتے. وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھی نہیں لگتی, وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھی نہیں لگتی, ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ادھورے لوگ رہتے ہیں. زندگی جو ہے وہ اب اکیلے چاہیے نہیں, ہولڈ آن, موو گریجولی بٹ موو ٹوگیدر. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے کہ جو ویژن ہم بنائیں تو مجھے یہ پرابلم فیس آ رہی ہے کہ ہاؤ ٹو میک سچ اے اسٹرانگ ویژن, لائک اس ویژن کو اتنا اسٹرانگ کیسے بناؤں کہ آئی کین پرسو اٹ فار مائی انٹائر لائف, کہ میں یہ سارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا کیسے کروں کہ میں اس کو 100 سال یا جتنی میری زندگی ہے اتنے میں لے جاؤں. ویژن کیسے بنے گا یہ آج کا ڈسکشن ہے.